Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your chemistry teacher. Today we are going to start chapter number 2, chemical combination. In this chapter we discuss chemical combinations, laws, their laws, law of conservation of mass, law of constant composition, law of definite proportion, law of multiple proportion, and law of reciprocal proportion. First of all, we start from law of conservation of mass. Law of conservation of mass is put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. According to the scientist, law of conservation of mass is, in any chemical reaction, the initial weight of reacting substance is equal to the final weight of the product. It means that if we are doing any chemical reaction, the weight of reacting substance is always equals to the final products which are obtaining after the reaction. This law can be explained by the example. For example, if we are taking hydrogen molecule and oxygen gas, which combines together, they form water molecules. If we take the mass of hydrogen and oxygen before the reaction, and secondly after the reaction we take the mass of water, they both are equal. It shows that the mass of reactant is equals to the mass of product. This law was verified by a German chemist H. Landolt, which performed an experiment, and this is called practical verification, named as Landolt experiment. German chemist Landolt takes a U-tube. German chemist Landolt experiment take a H tube which have two limbs. यानी ये जो उन्होंने ट्यूब यूज़ की एक एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए, तो उसकी शेप जो थी वो H शेप की थी और इसके दो आर्म्स थे, लिम्ब A and limb B. He takes silver nitrate solution in limb A, while in limb B he take hydrochloric acid. ये दोनों लिम्स में डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने के बाद उन्होंने रिएक्टेंट से पहले दोनों का वेट ले लिया, यानी सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाने से पहले रिएक्टेंट्स का वेट नोट किया. आफ्टर दैट ही इंटरमिक्स द टू सॉल्यूशन. उन्होंने इस पूरी ट्यूब को इन्वर्ट किया जिससे कि दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में मिक्स हो गए. मिक्स करने के बाद उन्होंने सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट और नाइट्रिक एसिड बनाया. आफ्टर दैट उन्होंने प्रोडक्ट का भी वेट नोट किया और ये देखा कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. इट शोज दैट दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट द मास ऑफ the substances before the reaction and after the reaction is always same. The next law is called law of constant composition. It is also called law of definite proportion. This law was put forward by Louis Proust in 1799. According to this law, every sample of a same compound always contains the same element combines together in the same proportion by mass. This law shows that कि अगर हम कोई भी सैम्पल, प्योर सैम्पल ले लें किसी भी कंपाउंड का, तो उसका सैम्पल चाहे हम कहीं से भी लें, लेकिन एलिमेंट्स के दरमियान जो रेशो होगी, जिस रेशो से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, वो हमेशा सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की या प्योर वाटर की एग्जांपल लें, और प्योर वाटर को चाहे हम उसको रिवर से ले लें, रेन वाटर हो, वाटर पंप से ले लें,
सी से ले लें, किसी भी कंट्री में जाके आप वाटर का सैंपल जो है उसको चेक करें, तो वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके दरमियान रेशो हमेशा सेम रहेगी, दैट इज़ 1:8 पार्ट बाय मास। दिस लॉ शोज़ दैट कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल को हम बहुत अच्छा यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो कि जे ब्रेजिलर साइंटिस्ट ने 1779 में इसको परफॉर्म किया कि उन्होंने 10 ग्राम लेड लिया और उसको 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र के साथ मिक्स किया। दोनों के रिएक्शन के नतीजे में 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड हासिल हुआ। इसी रिएक्शन को रिपीट किया, उन्होंने क्वांटिटी को चेंज किया और 10 ग्राम के बजाय 18 ग्राम ऑफ लेड यूज़ किया और सल्फ़र की क्वांटिटी जो सेम रखी 1.56 ग्राम। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑब्ज़र्व किया गया कि दोबारा उन्हें 11.56 लेड सल्फाइड हासिल हुई और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेड थी वो अनयूज्ड 8 ग्राम सेपरेट आउट हो गई, और जो लेड सल्फाइड की जो क्वांटिटी मिली, जो मास उसका हासिल हुआ वो 11.56 ग्राम ही था। ये कंफर्म करता है इस चीज़ को कि एलिमेंट्स के दरमियान रेशो हमेशा फिक्स रहती है। द नेक्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड the law of multiple proportion. The law of multiple proportion is presented by John Dalton in 1803. According to this law, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio. According to this law, ये law ये कहता है कि अगर हम दो elements लें, for example, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो इसमें हमने दो एलिमेंट्स लिए, पहला है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन, और ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में अगर हम कंपाउंड्स की रेशो देखें तो पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, दोनों के मासेस में कार्बन का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। दोनों के दरमियान रेशो बनती है 1। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का एक एटम है जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लिहाजा जो इनका मास निकलेगा कार्बन का 12 AMU, जबकि ऑक्सीजन का, क्योंकि एक का जो है 16 होता है तो 2 का आएगा 32। दोनों के दरमियान रेशो जो आएगी वो आ जाएगी 2 की। इसका मतलब है कि दोनों जो एलिमेंट हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके दरमियान जो रेशो होती है वो सिंपल मल्टीपल होता है, यानी यहाँ 1 उसके बाद 2। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल भी इसी तरह से है कि वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड में सेम रेशो आ रही है, दैट इज़ 1:2। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग असाइनमेंट नंबर 2, chapter number 2, chemical combination. Question number 1, state the law of conservation of mass with an example. First of all, you write the heading law of conservation of mass, subheading introduction. The law was put forward by Levizeur in 1785. The second heading is the statement. The statement should be written in the middle of the page with inverted commas. That is, during a chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed. That is, the mass of the reactants equals to the mass of product in any chemical reaction. Next is the example. Increase in the weight of 224 grams of iron on rusting is exactly equal to the weight of oxygen 96 gram combined from air. यानी जब आयरन को रस्ट लगता है या उसके आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, उसकी अमाउंट जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो कि आयरन से कंबाइन कर रही है 96 ग्राम्स के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। आयरन के 24 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन के 96 ग्राम, when they react together they form rust, that is ferric oxide, and the net amount is 320 gram. Question number 2, write the practical verification of the law of conservation of mass. It is also called
लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, इस लॉ को दोनों तरीक़ों से एग्ज़ाम में आता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन भी, और ये दूसरे नाम से भी आ सकता है, दैट इज़ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जर्मन केमिस्ट एच लैंडोल्ट वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे जो कि एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट किया, उसके तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट है, ही फिल्ड सम HCl सॉल्यूशन इन लिम्ब A एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन लिम्ब B of the H-shaped ट्यूब। सबसे पहले लैंडोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो H शेप ट्यूब ली थी, उसके एक लैंप में HCl और एक लैंप में सिल्वर नाइट्रेट ली। नंबर 2, सील्ड द ट्यूब सो दैट द मटेरियल कुड नॉट एस्केप आउटसाइड। दोनों लिम्ब्स को, दोनों बाजुओं को उन्होंने सील कर दिया था ताकि जो भी मटेरियल है वो बाहर ना निकल सके। नंबर 3, वेट द ट्यूब वर्टिकली। ट्यूब को सीधा रखकर उसका वेट किया गया, सो दैट द सोल्यूशन डिड नॉट इंटरमिक्स, ताकि दोनों सोल्यूशंस आपस में मिक्स ना हो सकें। नंबर 4, इन्वर्टेड द ट्यूब। ट्यूब को इन्वर्ट किया गया या उल्टा किया गया टू मिक्स द रिएक्टेंट्स, ताकि दोनों रिएक्टेंट्स जो कि हमने दोनों लिम्ब्स में लिए गए हैं, HCl और सिल्वर नाइट्रेट, दोनों मिक्स हो सकें। A white precipitate of silver chloride was formed। रिएक्शन के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगी हमारी, वो सिल्वर क्लोराइड होगा। इसी चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट प्लस नाइट्रिक एसिड। फाइनली द लास्ट पॉइंट, द ट्यूब वाज रीवेड अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट्स। इस ट्यूब को दोबारा से वे किया गया या उसका वज़न किया गया जो नए बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनके साथ। फिर है ऑब्जर्वेशन, ही ऑब्जर्व दैट वेट रिमेन सेम। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके बाद भी, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद भी वेट सेम रहा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट के लिए आप लिखेंगे द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, that is reactants, before the reaction is equal to the total mass of the substances products after the reaction। यानी किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन से पहले रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सब्सटेंसेस जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनका टोटल मास रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, ये दोनों नामों से आता है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के नाम से भी और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी। सबसे पहले यू राइट द इंट्रोडक्शन। फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्राउस्ट इन 1799 गेव द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट द स्टेटमेंट, वैसे ही इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसको, हर स्टेटमेंट को, किसी भी लॉ के स्टेटमेंट को आपने मिडिल ऑफ द पेज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। मिडिल ऑफ द पेज का मतलब है कि अगर आप 2 फिंगर स्पेस राइट साइड पे छोड़ रहे हैं तो 2 फिंगर स्पेस आप लेफ्ट साइड पे भी उसको छोड़ेंगे। इस तरह से आपने लिखना है, डिफरेंट सैम्पल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स combines together in the same proportion by mass। यानी किसी भी कंपाउंड के अगर आप डिफरेंट सैम्पल्स ले लें, लेकिन वो प्योर कंपाउंड हो, तो उनके दरमियान जो एलिमेंट्स की रेशियो होगी, जो प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा सेम होगा। इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स। यानी प्योर वाटर उसको आप कहीं से भी हासिल करें, रेन से, रिवर से, वेल से, यानी कुआं वगैरह, उससे, और प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, या आप लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करें वाटर को। ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमेशा कहीं से भी आप उसका सोर्स हो, वाटर के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और उनके दरमियान रेशो भी हमेशा सेम रहेगी इन सेम फिक्स रेशो, दैट इज़ 1:8 बाय मास, दैट इज़ 11.11% हाइड्रोजन प्लस 88.89% ऑफ ऑक्सीजन। इसी को केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इस तरह शो करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। हाइड्रोजन के 4 ग्राम्स जब ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स के साथ मिलते हैं तो 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बनाते हैं, जो कि इन दोनों के बराबर यानी रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एन एग्जाम्पल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आप एग्जाम्पल से कैसे शो करेंगे कि सबसे पहले इसकी हेडिंग आएगी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन यू राइट द इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। साइंटिस्ट का नेम। हर लॉ में आप सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपने सबसे पहले यही बताना होता है कि ये लॉ किस साइंटिस्ट ने पेश किया और कौन से ईयर में पेश किया, यही चीज़ इंट्रोडक्शन कहलाती है। फिर देन यू राइट द स्टेटमेंट, वैसे ही जैसे कि आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, द masses of one element that combines with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers or simple multiple ratio। यानी अब जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हों तो उनके दरमियान जो रेशो होती है वो सिंपल मल्टीपल रेशो होती है। इसी को आप एग्जाम्पल से शो करेंगे। एग्जाम्पल, कार्बन फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 2 कंपाउंड्स बनाता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO। दूसरा कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है वो 12 ग्राम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन 12 ग्राम होता है। यानी एक एलिमेंट जो कि इन दोनों कंपाउंड्स में मौजूद है, दैट इज़ कार्बन, वो उसकी अमाउंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम अमाउंट में है, 12 ग्राम 12 ग्राम। जबकि दूसरा एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में उसकी अमाउंट है 16 ग्राम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में उसका जो मास है वो है 32 ग्राम। यानी सिंपल मल्टीपल हो गया, 16 से एग्जैक्टली डबल है 32। और यही चीज़ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन की गई है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स की जो रेशो होगी उसमें एक सेम होगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो होगा सिंपल मल्टीपल। नेक्स्ट लाइन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम which combined with the fixed mass of carbon 12 gram are according to the law in the simple ratio of 1:2। तमाम क्वेश्चंस जो कि एक्सप्लेन किए गए असाइनमेंट में, ये तमाम क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर्स में जो कि आपके फेयर रजिस्टर्स हैं उनमें बहुत क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपने लिखने हैं और हेडिंग प्रॉपरली डालनी है। हेडिंग के लिए आपने ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर के अलावा आपने कोई कलर यूज़ नहीं करना। पहले आप इन क्वेश्चंस को याद करें और फिर अपने रजिस्टर्स में लिखें। थैंक यू।